ऐसे मतलब कौन से टैरो कार्ड्स होते हैं या फिर ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिनको लोग मतलब यूजुअली गलत समझते हैं सबसे ज्यादा? शनि, सैटर्न, लोग डरते भी हैं, डराया भी जाता है। टीका लगाना इज एक्टिवेटिंग अ थर्ड आई चक्रा, ठीक है। सो पुराने ज़माने में पेरेंट्स भी मदर लगाती थी एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू से फर्स्ट इज दे आर एक्टिवेटिंग योर थर्ड आई चक्रा, कि आप जब जा रहे हो बाहर यू आर मोर क्लियर, योर विजन इज फार साइटेड, आपको समझ आ रहा है बिकॉज यू आर एक्टिवेटेड योर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Miss Pooja Mehna, who is a holistic life coach, and we will get to know so many things about spirituality and healing and how does it work. So today's segment is going to be so interesting. So let's welcome ma'am. Thank you Niharika, and thank you TVT for inviting me to this. I am Pooja Mehna, a holistic life coach with an experience into the corporate for more than 2 decades. I've been a general manager of a multinational company as well as a multi-speciality hospitals to education institute and toward the spirituality. This is my passion come profession, which I have launched 7-8 years back in 2017 with, as she believes, borrow my belief till you gather yours. And with the mantra and with the belief that best is yet to be. So I do your birth date analysis, Vedic astrology, and bring the spirituality into the journey you are empowered or you are being into it. So the moment we add a magic of some spiritual activity in our lifestyle, we are aligned to shift and bring what we are desiring. So that's how I manifest the healthy luxury lifestyle in my and as well as everyone who is connecting to me for the guidance in their life. So healthy and happy to be here and with the belief that best is yet to be. So Pooja ma'am, firstly I would like to know about your journey कि आप इस पाथ पर कैसे पहुंचे? Hi Niharika, thank you for inviting me for this podcast first. And basically I was into the corporate educational institute, and married to an army officer has really given me an opportunity to travel the India with the different cities and occupation also. Right. So right from the medical industry, I was into the operations head of multinational hospitals and taken it to a different level. There the passion toward this has started. So I've been a clairvoyant and instinctively very strong from my childhood. Was being into this for family and friends. And suddenly in my hospital work experience, I felt like if the guidance to be spreaded across, so I started this profession also. So as it's actually a passion come profession. So and now it's been more than 7 years into this, and I'm being honored and blessed to have a global clientele, global reach. My clients are all over the countries outside also, as well as in India. Definitely I'm helping and I'm showing them the light. So life is blessed. Yeah, so Pooja ma'am, if we talk about spirituality and healing, तो हम देखें तो लोगों ने इन चीज़ों को बिजनेस बना दिया है, ठीक है, कि मतलब हर चीज़ से पैसा आ रहा है, पैसे कमा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस इंटेंशन से लोगों को काम करना चाहिए इन चीज़ों पर? To some extent it is right. घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? But I always feel the thing that obviously everyone is there to earn and all. True. But जो मेरा मानना है and what I follow it in my journey also is that कि किसी के दुख और मजबूरी का मत कमाओ. So when the person is in happy mood, जब कोई खुश है तो आप 2 times ज़्यादा कमा लो,
वो आपको फलेगा भी, मतलब दैट विल बी, अदरवाइज अगर किसी की मजबूरी में आप उसका फायदा उठा के कि भाई मेरे तो रेट बढ़ गए, मेरी तो कम वो बढ़ गया, so you will always, there will be a karma which will come back and something, so always go in a flow कि किसी की दुख मजबूरी और उसमें मत कमाओ, charge your services and you should always be upfront कि these are my service charges, if you are happy you have agreed to pay me that ना, उसके बाद it's my job to show you a light, show you a path and you're working on it, so that's how it goes up. सो ऑल्सो मैम, आप स्पिरिचुअल बेदिंग के बारे में भी काफ़ी बात करते हो, तो आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ इट, क्या होता है, रिचुअल है कि क्या चीज़ है? ओके, स्पिरिचुअल बेदिंग इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी इन माई बर्थ डेट एनालिसिस, जो मैं न्यूमरोलॉजी सेशंस या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो कुंडली और बर्थ डेट दिखती हूँ, तो आई ऑल रिकमेंड माई क्लाइंट्स फॉर दी स्पिरिचुअल बेदिंग. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे समझने वाली चीज़ ये है कि हम शिवलिंग पे या हम किसी भगवान जी को जब हम अभिषेक कराते हैं, राधा कृष्ण हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, गणेश जी हो गए, हम उन पे क्या चढ़ाते हैं? दूध, दही, चंदन, हनी. तो हम जब खुद को स्नान करा रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग अ शावर आवरसेल्फ, जो हमारा एक डेली रिचुअल है, टेकिंग अ बाथ इज अ डेली रिचुअल, तो हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल बेस सोप्स, बॉडी शॉप्स, ऑल दोज थिंग्स. सो जितने भी हमारे ये आ रहे हैं फोमिंग वाले या वो सब, दे आर एक्चुअली केमिकल बेस्ड, है ना. एंड वो भी क्या दिखा रहे हैं? दे आर शोइंग इन देयर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स कि हमने हमारे केमिकल में रोज डाला, हमने हमारे केमिकल में मिल्क से ये हमने सोप बनाया है, हमने इट्स अ वेरी सॉफ्ट लाइक अ कर्ड, इट्स अ सॉफ्ट लाइक अ क्रीम. बट हम वो चीज एक्चुअल में क्यों नहीं ले रहे जो हमारे किचन में अवेलेबल है, जो हमारे घर में है हमारा. एंड इसका सेकंड में इज समथिंग जो पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी होते थे, या जब राजा होते थे, रानियां होती थी, उस टाइम पे कोई केमिकल बेस्ड फैक्ट्रीज नहीं थी. सब फूलों के उपटन लेते थे, चंदन, गुलाब या अलग अलग फ्लावर्स. पुराने ज़माने में दे यूज्ड टू मेक की डे वाइज, गुरुवार का दिन है तो हल्दी का उपटन बना के रखते थे, चंदन का उपटन बना के रखते थे. शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे विच इज अ डे ऑफ अ वीनस, उस दिन आप रोज का उपटन बना के रखते थे. तो पूरी फैमिली यूज्ड टू टेक शावर विद दैट. So that's a more powerful thing. Our skin has a soul. We have a soul. Our skin is the senses. So it goes to our soul also. So why not to empower our, charge our soul and all. Exactly. So I go with that spiritual bathing. We make those spiritual scrubs also. So ma'am, according to you, ऐसे कौन से 3 plants हैं जो कि गॉडेस लक्ष्मी को प्लीज करते हैं? तुलसी, okay, मनी प्लांट एंड लकी बैम्बू. लकी बैम्बू का आपने बहुत उसमें सुना होगा, फेंग शुई में भी आता है एंड वैसे भी आता है. एंड जब मेरे पास अब क्लाइंट्स आते हैं, जैसे हमारा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो ठीक है यार, नया ले लो, इट हैज़ डन हिज जॉब, इट हैज़ एब्जॉर्ब दिस नेगेटिविटी एंड इट हैज़ एब्जॉर्ब. तो 2-3 बार आप चेंज करोगे, वो जल्दी जल्दी अगर खराब भी हो रहे हैं आपके, तो थोड़े दिनों में वो फलने लग जाएंगे. द मोमेंट योर एनवायरमेंट एंड योर सराउंडिंग इज क्लीन एंड चार्ज. तो दीज आर द 3 प्लांट विच गॉडेस लक्ष्मी रियली लाइक्स इट, एंड वन शुड ऑलवेज कीप इट इन अ होम. घर में रखना चाहिए फॉर सुख समृद्धि. ऑल्सो मैम, लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, इनको कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए हमें? तुलसी तो नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा ईशान कोण होता है, तो एंड मतलब दिया जलाना एंड उसमें. बाकी आपका लकी बैम्बू, वी ऑलवेज सेज कि हाउ यू वांट टू एम्पावर योरसेल्फ, उसके अपना 1, 3, 5, 7, 9 उस नंबर्स में भी चलते हैं. सो दैट एक्चुअली गोज डिपेंडिंग अपॉन दैट आई गाइड एज पर द बर्थ डेट, कि आपके उसके हिसाब से कितने नंबर्स आपको चाहिए, जो मिसिंग है तो उसको हमें एम्पावर करना है. तो इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी टू बाय दोज लकी बैम्बू. गिफ्ट में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है. एंड उसको आप उस लगाना शुरू करिए उसमें. इट गोज दैट वे. एंड पूजा मैम, आपने ये भी बात करी थी कि जो हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, उससे मतलब रिजल्ट में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं. तो आप बता सकते हो कि मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जिसमें मतलब कोई भी आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ हो और काफ़ी मतलब मिरेकल भी हुआ हो उसके थ्रू? A lot many. I'll not say कि normal. मेरा अपनी जर्नी तो I always say it's a blessed journey, with the belief that best is yet to be. And a lot of things. The thing is that कि first you have to accept the journey you have been blessed to, है ना. अब उसमें how can you enhance it? So more than me, I would like to say the energy shifts of my clients who have been really empowered themselves
and doing wonders after being a मतलब homemakers, परेशान, कोई husband से, like I'll give you an example of one. Her husband was having an extramarital. She was not working also. She was like कि मैम मेरे पास तो नहीं है. So all these areas of our life, relationship, finances, health, everything is interrelated. ठीक है. तो वो रिलेशनशिप में परेशान थी. I boosted her finances. मैंने कहा ठीक है, आप क्या कर सकते हो पहले ये बताओ. She was a dietitian. We said आप घर से शुरू करो. Approach people, कोई ना कोई तो आपको मिलेगा. Start doing that. She started earning from 0 to 9,000. And within 3 years, she is in Canada. Her husband came, he asked for the forgiveness, apology लेके आए कि मेरे से मतलब whatever it was. But she was having a bigger heart to forgive her thing. So, but what she told me was कि ma'am, the day you met me and the day you gave me a simple remedy, एक कपूर और लौंग को करना, मतलब not even a single day I've taken a break in 3 years. So that consistency and belief कि हम ये मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है. तो फ्रॉम 0 से उसने 100 कमाना शुरू करा. जब वो कंटिन्यू रखा तो 100 से 500 पे पहुंचे. 500 से आप आज $100 और $1,000 शी इज इन अर्निंग इन कैनेडा विद इन 3 years. बट दैट हैज मल्टीप्लाइड. होता क्या है कि क्लाइंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ कि वी हैव अचीव्ड, ओके हाँ ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग गुड, मेरी को आज नींद ठीक आ गई, उन्होंने वो रेमेडी बंद कर दी. दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक प्लैनेट को भी या एक हम एनर्जी को जब इनवाइट कर रहे हैं या इन्वोक कर रहे हैं, वी नीड अ रेगुलरिटी ना. सिंपल अगर मैं बोलूँ कि कोई आपको अननोन नंबर पे कॉल करे जा रहा है और आप रोज नहीं उठा रहे हो, अननोन जा रहा है, एक दिन आप परेशान होते हैं कि रोज इस समय कौन कॉल करता है, एंड देन यू पिकअप के अननोन नंबर उठाया एंड इट्स अ अमेजिंगली अ कॉल विच यू आर लुकिंग फ्रॉम सो लॉन्ग कि हाँ मैं इस तरह का कुछ ढूंढ रही थी एंड आई हैव गॉट इट. सो दिस इज हाउ यू डिले और थिंक. तो वो हम भी प्लैनेट को उस तरह से नॉक कर रहे हैं कि प्लीज ओपन एंड वेलकम अस. एंड धीरे धीरे वो दोस्ती बनती है, धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप होती है. जैसे जैसे वो फ्रेंडशिप डीप होती है, वो प्लैनेट हमारे लाइफ में इन्हांस करना शुरू करता है, तब हम वो ग्रोथ पे जाना शुरू करते हैं. राइट. तो दिस इज हाउ द जर्नी इज. So Pooja ma'am, there's a favorite topic of mine that is manifestation. Oh lovely. Yeah. Mine also. I manifested all this. Okay. So ma'am, usually लोग के questions भी होते हैं कि what is manifestation? लोग अक्सर इसको day dreaming बोलते हैं. ठीक है. तो आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, कैसे वर्क करता है? Everything is manifestation. मेरे हिसाब से हम जो लाइफ हम जी रहे हैं, we are only manifesting it. Okay. है ना. अगर हम एक थॉट के लूप में फंस जाते हैं, सो वी आर मैनिफेस्टिंग उसका अगला स्टेप, और हम कह रहे हैं हाँ देखा मैंने तो सोचा था कि अब इसका रिएक्शन ये होगा, शी विल नॉट बी हैप्पी विद दिस, उसका रिएक्शन तो यही हो. अरे भाई आप अपने थॉट्स में उसका रिएक्शन चेंज करो ना. एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार सडनली दैट रिएक्शन विल बी द वे यू थॉट. सो वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न इन आवर थॉट्स फर्स्ट एंड देन वी हैव टू टेक एन एक्शन. मैनिफेस्टेशन इज अ थॉट्स एंड एक्शन जो हम कर रहे हैं, मतलब सोचना एंड कर्म करना. सो ये दोनों का रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन. अब क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो. सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन में है, जर्नलिंग, लिखना. सो आई ऑलवेज सेज अपनी ख्वाहिशें लिखो. राइट. मतलब इवन अ फर्स्ट टाइम द क्लाइंट कम्स टू मी, मैं तो कहती हूँ पहले तो 40-50 मिनट लेके आना टू अंडरस्टैंड योर बर्थ डेट, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, एंड वो लिखना बहुत जरूरी है. बच्चों को भी सिखाओ कि प्लीज स्टार्ट राइटिंग, राइट योर विश एंड फुलफिल देयर विश. एज अ पेरेंट यू कैन फुलफिल देयर विश. तो उनको एक वो बिलीफ सिस्टम आएगा कि लिखना, जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू रियली अचीव व्हाट यू आर राइटिंग. हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, सुनाए नहीं गए हैं, बोले नहीं गए हैं, दे हैव बीन रिटन, इनस्क्रिप्टेड है. तो हम उनको आगे आगे जनरेशन पढ़ पा रही है, लोग उनको ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, पुटिंग अप देयर. सो दिस इज हाउ, मतलब इवन गॉड हैज आल्सो बीन टेलीपैथिकली लिखवाया था उन्होंने कि लिखो इनको. एंड मैम इनमें डेली अफर्मेशंस भी होती हैं. डेली अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट यू वांट टू अचीव अकॉर्डिंग टू दैट एंड उसका आउटकम. आप आज एक स्टेप आगे गए हो तो अपनी अफर्मेशन को उस स्टेप पे लेके जाना, वो सब चीजें होती हैं. यू कैन कनेक्ट मी फॉर दैट, हम उसमें करते हैं पूरा. सो दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर
lifestyle. Right. So I'm a luxury coach. So we do with all this कि let's एक जन्म मिला है, अच्छे से जीते हैं, and let's manifest healthy happiness, because health is the real wealth which is very important. क्योंकि कोई भी घर में अगर बीमार होता है तो इट इज़ नॉट ओनली दैट कि वो पर्सन बीमार हो रहा है, हम एज अ फैमिली मेम्बर भी इमोशनली ड्रेंच होते हैं उसके साथ में. फाइनेंसेस तो लगते ही लगते हैं, जो हॉस्पिटल में आप लगा रहे हो, मेडिसिन में आप लगा रहे हो, उस तरफ लगा रहे हो. सो हेल्थ इज द रियल वेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज मैनिफेस्ट हेल्दी हैप्पीनेस, healthy luxury, healthy vibes. So word healthy is very important in the manifestation. सो पूजा मैम, अभी हम स्पिरिचुअल बेदिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं जो स्क्रब्स यूज होते हैं उसमें उनकी रेसिपी क्या होती है, क्या हम खुद बना सकते हैं, मतलब कैसे बनते हैं वो? देखिए, बेसिक रेमेडी, बेसिक इंग्रेडिएंट तो आपके किचन में मिल जाएगा, बट ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक कि वन इंग्रेडिएंट. बट अगर हमें कोई रेसिपी बनानी है, कोई खीर भी बनानी है, तो हमें उसमें 6 से 7 इंग्रेडिएंट्स तो लगते ही लगते हैं. सो दीज स्क्रब्स आर एज पर योर एरियाज ऑफ लाइफ. तो मनी स्क्रब फॉर द वेल्थ एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें हम मरकुरी को भी एक्टिवेट करते हैं, द प्लैनेट मरकुरी विच इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ फास्टेस्ट. तो वीनस को एक्टिवेट करते हैं. अष्टलक्ष्मी स्क्रब है हमारा. सो आई डोंट मेक इट नाउ, पहले कभी बनाती थी मैं, बट नाउ देर इज अ हीलर पर्सन इन पुणे. उनका मैं आपको नाम दे देती हूँ, आप चाहे टैग कर देना उनका पेज, क्रिएशंस बाय गीना. तो उनके स्क्रब्स हैं जो मैं भी अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप वहाँ से लीजिए. अ वेरी ऑथेंटिक एंड केमिकल फ्री, ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप most of the people and most of the healers are buying from her, and उनकी जो चीज वो 900 की, 900 या 1100 की है, वो healers are selling with their branding in 2500. अब मेरे पास सेम मर्कुरी स्क्रब, मनी स्क्रब है, वेल्थ स्क्रब है, लव स्क्रब है, अष्टलक्ष्मी स्क्रब है. people are selling it on their brand with 2500, 2200, 3300 depending upon the clientele they are having. ठीक है, उनका भी अपना, everyone is to them to earn, but this girl is making on a very organically, and उसमें कुछ आपकी ये लगती हैं roots of, जैसे तुलसी का रूट लगा या उनका, तो हम वो घर में अगर बनाना भी चाहें तो बहुत मेहनत लगती है. clients don't want to put that effort at all. मतलब if I tell you, मेरे तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, कॉर्पोरेट वाले भी एंड होम मेकर्स भी, जिनको अगर मैं सिंपल सी रेमेडी दूं ना कि आप नंगे पैर घास पे चलो, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अ रूट चक्रा, दे डोंट वांट टू वॉक. दे हैव सो मच ऑफ एक्सक्यूज कि मैजिक हो जाए कहीं से, बट हम अपना मतलब वो मतलब समझाना ही मुश्किल होता है कि हाउ टू चार्ज योरसेल्फ. चार्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको स्विगी की तरह से हम अगर खाना भी बना के दे रहे हैं तो है ना, तो घर में आने के बाद तो आपको खुद ही उसको प्लेट में लगाना है ना, खुद ही यू हैव टू ईट, यू हैव टू डाइजेस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू च्यू योरसेल्फ. तो समथिंग लाइक अगर हम आपको बेदिंग स्क्रब भी दे रहे हैं तो यू हैव टू यूज इट योरसेल्फ. तो थोड़ी सी तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी टू चार्ज इट योरसेल्फ. इट गोज लाइक दैट. Okay, so ma'am, as we know that you are a tarot reader as well. So according to you, what is tarot reading exactly? Tarot actually connects with your energy. ठीक है, it's an Egyptian art. They have made it. You can relate it. Every tarot reader picks up the energy of yours as well as what the card is symbolizing in it. So अगर उसमें someone will see that green color as a heart chakra, I might connect at that, because it's talking about your wealth energy. Let's activate that energy. वो important है इस समय मेरे को, अगर तो because I want कि interrelated जो है relationship और wealth को हमें वो करना है. Same heart is also being associated with the green color, wealth energy is also associated with the green color. तो जो हमारा दिल चाह रहा है हम वो चीज करें. So you just have to divert it. तो tarot, every reader picks up its own energy. मैं अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं, एंड आई कनेक्ट टू द क्लाइंट एंड गिव देम और शो देम कि ये पाथ है. अ वेरी सिमिलर कि मुझे जो दिख रहा है कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे, गुड़गांव पहुंचना है तो सब वहीं तक पहुंचेंगे ना, दिल्ली टू गुड़गांव डिस्टेंस उतना ही है, बट देयर आर 2-3 वेज. कोई महिपालपुर से भी आ सकता है, कोई एमजी रोड से भी आ सकता है, कोई एयरपोर्ट के आगे से भी आ सकता है. विच वे यू वांट टू पिक इट अप.
अभी जीपीएस ने इजी कर दिया कि ट्रैफिक दिख रहा है तो इधर से चले जाते हैं। तो समथिंग सिमिलर टैरो शोज कि मैम मेरे को लग रहा है इतना है, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, डायरेक्शन चेंज करिए, एक्शंस में कुछ चेंजेस लाइए, या किसी अपने पुराने फ्रेंड न्यू फ्रेंड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तो यू विल गेट दैट हेल्प। तो दैट द लाइट विच वी शोज इट टू देम। सो इट्स अ डीप, इट्स वेरी वास्ट, तो इसमें यू कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट टू शो यू दैट इट गोज दैट वे। ऑल्सो मैम जो ऐसे मतलब कौन से टैरो कार्ड्स होते हैं या फिर ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिनको लोग मतलब यूजुअली गलत समझते हैं सबसे ज्यादा? शनि, सैटर्न, लोग डरते भी हैं, डराया भी जाता है। बेसिकली डराया इसलिए जाता है या डरते इसलिए है बिकॉज अननोइंगली और नोइंगली दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर ओन कर्मा। तो अनइंटेंशनली तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ इंटेंशनली अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ तो आई शुड ऑल्सो फील दैट पेन इन माई सेल्फ कि नो आई एम डूइंग रॉन्ग। और हमारी इनर कॉन्शियस को तो पता ही होता है कि मैं इंटेंशनली कर रही हूँ या अनइंटेंशनली कर रही हूँ, बट सर्कमस्टांसेस या चीजें क्या होती हैं उसको हम कुछ नहीं कर सकते। एंड समटाइम अननोइंगली इन द सेंस ऑफ, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अ वेरी ब्रीफ अबाउट सैटर्न और कर्मा। हमने एक बेगर को 500 रुपीज दिए, मैं सोच के इट्स अ गुड कर्मा। दैट बेगर उसने जाके ड्रिंक कर लिया, ठीक है, अब उसने घर जाके शोर मचाया, आतंक मचाया, वाइफ को बीट करा, बच्चों को गुस्सा करा, सबको। सो अननोइंगली आप उसकी वाइफ को ये नहीं पता कि किसने उसको दिए थे, बस शी सेड हे भगवान कौन इसको आज पैसे दे गया जिसकी वजह से आई गॉट दैट बैचिंग और वो। सो वहां आपका कर्मा क्या हो गया, अननोइंगली गलत हो गया। सो वी ऑलवेज सेज कि आपने अगर डोनेट करना है तो बी वेरी ऑथेंटिक टूवर्ड्स अ प्लेस जहां आप डोनेट कर रहे हो। अदरवाइज डोनेट फूड, ड्रिंक, उस तरह की आप खाने पीने की चीजों को आप वो दीजिए। सो these are the very small example of the karma, इसमें बड़े बड़े भी होती हैं चीजें, तो it goes like that way. So but Saturn से काफी लोग डरते हैं, मैम हमारी शनि आ गई, हमारे सारे सती आ गई। So it is actually for the transformation. Saturn is something like वो my father used to say कि जब तक हथौड़ी नहीं लगेगी मूर्ति की मूरत नहीं आएगी। So वो मूरत लाने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लाने के लिए आप में Saturn plays a role. It's a very very important planet and a मतलब beautiful planet, no doubt in that, but one should be mindful towards its own karma and action. एंड मैम ऐसा भी होता है कि घर में क्या होता है कि अक्सर मतलब हमारे जो मम्मी पापा है वो बोलते हैं कि घर से मतलब निकलोगे तो लाल टीका लगा के जाना। पहले ज़माने में भी ये काफ़ी चीज़ें होती थी मतलब ऐसी, तो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, टीका लगाना इससे पुराने ज़माने में भी होता था। टीका लगाना इज एक्टिवेटिंग अ थर्ड आई चक्रा, ठीक है। सो पुराने ज़माने में पेरेंट्स भी मदर लगाती थी एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू से फर्स्ट इज दे आर एक्टिवेटिंग योर थर्ड आई चक्रा, कि आप जब जा रहे हो बाहर यू आर मोर क्लियर, योर विजन इज फार साइटेड, आपको समझ आ रहा है बिकॉज यू एक्टिवेटेड योर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। अब किस चीज का टीका लगाना है, मैं फॉर माई क्लाइंट्स आई ऑलवेज से कि जब बर्थ डेट देखते हैं तो मैं किसी को रोज का बोलती हूँ कि गुलाब का इत्र का लगाना है। अगर हमें उनका विनस करना है कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है और उनको फल नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली लक में कहीं ना कहीं कमी हो रही है ना। सो उस हिसाब से हम किसी को चंदन बोलते हैं, किसी को केसर का टीका बोलते हैं, किसी को इत्र का बताते हैं। सो इट गोज that way. So that is why the tika is very important, as well as the places third eye, throat chakra and my navel, which is the Brahman of my own human born ka. So it's again a very important point. So it goes like that way. एंड मैम जो कलर्स होते हैं वो भी क्या हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं? मतलब हम सुनते हैं कि मतलब काले कपड़े पहन के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ होता है? Yeah, colors are very important. सिंपल सी बात है, हमारा जो स्काई है या नेचुरल कलर्स हैं, जस्ट रिलेट योरसेल्फ विद द रेनबो। नेचुरल कलर्स है ना, किसी ने बनाए तो है नहीं, अपने आप बनते हैं यूनिवर्स में, है ना। सन एंड रेन का हम कहते हैं मर जा, रेनबो दिखेगा दिखेगा दिखेगा, बचपन से देख रहे हैं। रेनबोज आर द नेचुरल कलर्स, ठीक है। सो जस्ट मर्ज योर लाइफ विद द रेनबो। आई ऑलवेज से टू लॉट ऑफ पीपल हु कम विद द वेरी स्टक्ड एनर्जी, जब आते हैं ब्लॉकेजेस के साथ, जब आते हैं, सबसे पहले की वार्डरोब को अब से रिफ्रेश करना शुरू कर दो। पुराने तो नहीं हटाओगे, बट अब जब खरीदने जा रहे हो तो प्लीज गो फॉर द रेनबो कलर्स। नाउ रेनबो कलर्स के शेड्स मल्टीपल हैं, मिलियंस ऑफ शेड्स।
है ना, लाइटर भी जा रहा है, डार्कर भी जा रहा है, उसमें भी जा रहा है, पेस्टल शेड्स में चले जाओ, उनके ब्राइट शेड्स में चले जाओ उनके, मर्ज योर लाइफ विद द रेनबो कलर्स. ठीक है, ब्लैक इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, इट गिव्स यू अ पावर, इट गिव्स यू एन अथॉरिटी, बट मर्ज इट विद अ कलर ऑफ अ लग्जरी. तो आप अगर देखो तो ब्लैक के साथ पर्पल बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट बहुत अच्छा जाता है. व्हाइट एंड ब्लैक इज ब्रिंगिंग अ बैलेंस, इट्स अ टू कलर्स ऑफ डे एंड नाइट. सो ब्रिंग दैट बैलेंस, ब्रिंग दैट लग्जरी इन योर स्टाइलिंग, इन योर लाइफ. तो जिस तरह से हम इनको करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, इट ब्रिंग्स आउट द रिजल्ट इन आवर लॉन्गर उसमें. एग्जैक्टली. या सो पूजा मैम, अब थोड़ा स्पिरिचुअल और इमोशनल साइड पे जाते हैं. My question is that how to let go of someone or something. Let go, and it's actually, people find it very difficult. It is also till the time you don't reach it, but it's a beautiful part of our life. कि detachment. Yeah. है ना, when you are actually being एक्सेप्टेंस जब आ जाती है ना सिचुएशन की, इन्वायरमेंट की, तो लेट गो थोड़ा सा इजी हो जाता है. बट देयर इज अ होपोनोपो प्रेयर और टू क्रिएट अ स्पेस, and it's again very powerful and magical in its own way. One has to chant that simple 4 lines hain, I'm sorry, please forgive me, love you, thank you, but it brings lot of magic in our life. So let go is, it depend करता है कि आपका क्या है. सबसे मुश्किल होता है to forgive a cheat, धोखा, lie. So that heart is very difficult to do that, but people do that. I have a clients जिनके हस्बैंड्स का एक्सट्रामैरिटल अफेयर हो रहा होता है, या दे हैव दैट हार्ट टू फॉरगिव, लेट गो दैट थिंग कि ओके लेट गो, आगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं एंड ऑल दैट. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल हार्ट यू आर ब्लेस्ड विद. एंड अब जब आपने मन बना लिया है तो हम उसी दुनिया में हैं, उसी धरती पे हैं जिसमें माँ सती थी, जो अपने पति को यमराज से वापस लेके आई थी, है ना. शी गॉट हर हस्बैंड बैक फ्रॉम द डेथ, मतलब यमराज से लेके आई थी. सो हमें क्या, हमारे तो मतलब जो हमारे 7 जन्मों का रिश्ता है, हस्बैंड है वो मतलब ही इज जस्ट गॉन टू अ नेक्स्ट लेन नेबर और समवेयर, तो वहां से वापस लाना है ना, इतना मुश्किल थोड़ी है. सो यू हैव टू जस्ट पुट इन द एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स टू क्रिएट योर एनवायरनमेंट. सो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे शिफ्ट्स, उससे काफी फर्क पड़ जाता है एक्टिविटी से. Okay, so ma'am, my last question is that your work is basically about magic beyond logic, right? So आपके पास कुछ ऐसे clients भी आते होंगे जो काफी logical होते हैं, काफी skeptical होते हैं. बहुत आते हैं, पूछो मत, घबराहट ही हो जाती है उनको समझाते but it's challenging, but it's good. It's great to be bringing that belief in them कि magic is real. And our life is magical. It's actually very beautiful with them, but बहुत मेहनत लगती है, no doubt in that. See, logic and magic is एक ही coin के दोनों हिस्से हैं, है तो दोनों साथ साथ ही. But when we explain कि why I'm talking about, like I tell you, like spiritual bathing, अब उनको ये समझा, तो bringing that shift in them कि ठीक है, आप 21 days तक सिंपल सी एक चीज करो कि you are going for a shower, नहाने तो जा ही रहे हो ना यार, तो just don't go for this chemical based product from a fancy store and all that. मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगी, स्यू कर देंगे मेरे ऊपर, but go for the herbal bath. है ना, just bring that, उसको मिक्स करो 1 चम्मच दही में, 1 चम्मच दूध में, whatever is required in that moment, and take a shower, rub yourself, scrub yourself, give yourself in the shower 5 minutes and see what is happening. सबसे पहले उनका sleep pattern improve होता है. ठीक है. सो द मोमेंट देयर स्लीप पैटर्न इज बीन इम्प्रूव, दिस सेज कि मैम हम बहुत दिनों के बाद थॉट मतलब अच्छा सोए, फ्रेश उठे, थॉट्स थोड़े कम थे सोते समय, रात मतलब दैट स्लीप वाज नॉट दैट डिस्टर्ब स्लीप, they start believing in that magic. Yes, it can happen. So you have to put in that effort, but it is very real. Thank you audience for watching this podcast, and please do connect me if you are seeking any guidance, you are seeking for your relationship, for your wealth energy, for your space energy, for the healthy environment you are seeking, corporate politics.
I am there to guide you. May my guidance bring you lots and lots of positive shifts and luxury lifestyle you are desiring to live in your life. So do connect. My details, my contact details are there on the screen. आप screen पे देख सकते हैं. You can connect me, you can DM me. आप मेरे Instagram page पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे WhatsApp पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. I am there to guide you. Let's have this beautiful life together for the journey of healthy luxury lifestyle. Thank you.